morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST, and in SST we are doing geography. So, in today's video, I will explain you worksheet 2, which will be related to chapter 5, and the topic of the chapter is major domains of the earth. So as you all know that yesterday we have started this chapter, and yesterday I have provided a YouTube link through which you all have understood the chapter, and we have done keywords and some exercises related to this chapter also. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 7 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you will mention chapter 5 in your copies, only chapter 5. Chapter name is not mandatory to mention, as you have already mentioned it when you have started the chapter yesterday. So let's come back to the work of today. In today's video, first of all I will explain you about question answers. So the first question is, what are the 4 major domains of the earth? मीन्स पृथ्वी के जो 4 मुख्य मेजर डोमेन्स हैं, भाग हैं, क्षेत्र हैं, वो क्या हैं? The answer is the 4 major domains of the earth are, means जो पृथ्वी है उसके 4 महत्वपूर्ण भाग हैं. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, सेकेंड हाइड्रोस्फेयर, थर्ड एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ बायोस्फेयर. So what is lithosphere? The solid portion of the earth is called the lithosphere. Means अर्थ का वो पोर्शन जो लैंड को कंसिस्ट करता है, that is called lithosphere. Next आता है आपका हाइड्रोस्फेयर. So as you all know that there is 71% वाटर ऑन द अर्थ. सो जो अर्थ का पोर्शन वाटर को कंसिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. थर्ड आता है आपका एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो एज यू ऑल नो that the earth is surrounded by a layer of gas, and that layer, the thin blanket of gases, that is called atmosphere. Next आता है आपका what is biosphere. So biosphere क्या होता है? It is a narrow zone of contact between the land, water and air. So एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसी की वजह से अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर. So the second question is, name the major continents of the earth. Means continent is clear to all of you that these are large land masses. पृथ्वी पर बड़े बड़े जो पृथ्वी के टुकड़े होते हैं भूमि के, that is called continent. And the major continents of the earth are, जो major continents हैं, there are 7 continents in the world. First is Asia, second Africa, third Europe, fourth North America, fifth South America, sixth Australia and 7 Antarctica. So these 7 continents are there in the world. Next question is, name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. ऐसे 2 continents के नेम बताना है जो completely, entirely means पूरी तरह से southern hemisphere में पड़ते हैं, means southern hemisphere में स्थित हैं. So the answer is 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere are, 2 continent जो पूरी तरीके से स्थित है southern hemisphere में, that is Australia and second is Antarctica. Now let's see the next question. Question number 4 is, name the different layers of atmosphere. आपको atmosphere की different layers बतानी है. So atmosphere is clear to all of you. It is a thin blanket of gases that surrounds the earth. ये एक ब्लैंकेट बोल सकते हैं आप गैसेस का. थिन ब्लैंकेट होता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से, अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है, एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो देयर आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेट्स सी. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर जो है इसकी लेयर्स होती हैं. सो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? सो आंसर इज, फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज 71% वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सो जब हम स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, सो जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो नीले कलर की दिखाई देती है बिकॉज पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ऑन द अर्थ. देयरफॉर द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर को
लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोला जाता है? सो द आंसर इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. सो जो ग्रेटर पार्ट है लैंड मासेस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट दीज आर द बिग एंड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड. पृथ्वी के सॉरी भूमि के टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े. सो ये कहाँ लाए पड़ते हैं? लाई मीन्स स्थित हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर. सो इसी वजह से जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसको लैंड हेमिस्फीयर बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो बायोस्फीयर इज द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. अब बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? सो द आंसर इज द बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट हियर. बिकॉज जीवन जो है वो यहाँ पर ही एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स. 3 महत्वपूर्ण तत्व जो होते हैं वो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं. दैट इज लैंड मीन्स भूमि, एयर हवा, वाटर पानी. सो दैट्स वाई बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज 3 थिंग्स द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज नेम द 2 मेजर डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. मीन्स जो 2 भाग हैं, मेजर 2 भाग हैं पृथ्वी की सतह के, उसके नेम बताने हैं. So the answer is the 2 major divisions of the earth's surface are large land masses known as the continents. So जो 2 मेजर डिवीजन है, जो 2 मेजर भाग हैं पृथ्वी की सतह के, फर्स्ट इज लार्ज लैंड मासेस, पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े, नोन एज द कॉन्टिनेंट, जिनको कॉन्टिनेंट्स के नेम से जाना जाता है. एंड द लार्ज वाटर बॉडीज, और बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज होती हैं नोन एज द ओशियन बेसिन. सो 2 मेजर डिवीजन्स आर continents and ocean basins. Next question is question number 9, that is how is the atmosphere useful to us. एटमॉस्फेयर हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है? सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट दिस चैप्टर दैट जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड है, मीन्स घिरी हुई है चारों तरफ से, एक एनवेलप टाइप का है जो गैस का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसको हम थिन ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रीथ. ये जो थिन ब्लैंकेट होता है हवा का, गैसेस का, ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जिससे हम सांस ले सकें एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज. और जो सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं, सन्स रे मीन्स होता है सूरज की किरण, सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है. वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. So these were the question answers related to chapter 5. I hope all the question answers are clear to you. So one thing I must tell you that the handwriting of your work must be very neat and clean, and if you are drawing the flow chart, it should be drawn like as it is I have drawn in the worksheets. No changes should be there. Pay attention on the handwriting and spelling mistakes also. So if any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.